اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آفتاب عالم کے پہلے پارٹ کے بعد سے دوسرے پارٹ کی شروعات میں آپ کی ڈھیر ساری پیار بھری دعاؤں کے ساتھ کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بھی پارٹ بہت پسند آئے گا انشاء اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بت سفید پتھر کا نہایت خوبصورت عورت کی شکل کا تھا، جس کے بال اس طرح اس کے دوش پر بکھرے ہوئے تھے جیسے کوئی پری پی کر حسینہ ابھی نہا کر اٹھی ہو اور اس نے سر کے بال سکھانے کے لیے کمر اور کندھوں پر بکھیر دیے ہوں۔ اس بت کا نام سورو تھا۔ قبیلہ حجیل اس کی پرستش کرتا تھا، چنانچہ اس قبیلہ کے لوگ اس کے سامنے آتے ہی سجدہ میں گر پڑے۔ ایک اور بت سرخ پتھر کا تھا، اس کی صورت شیر کی تھی، ایک اونچے اور بڑے چبوترا پر اس شان سے کھڑا تھا جیسے کہ وہ شکار پر جست کرنے والا ہے۔ اس بت کا نام لغوت تھا۔ یمن کے تمام قبائل اس کی پرستش کرتے تھے۔ ایک بت بھورے رنگ کا پتھر کا تھا، بالکل گھوڑے کی شکل کا تھا اور ایک وسیع سیاہ چبوترے پر کھڑا تھا، بڑا ہیبت ناک تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گویا دوڑنے والا ہے۔ اس کا نام لغوق تھا۔ اس کی پرستش قبیلہ ہمدان کرتا تھا۔ ایک اور بت تھا جو سیاہ پتھر تراش کر بنایا گیا تھا، اس کی صورت بالکل گدھ کی سی تھی، بڑا خوفناک تھا، سفید پتھر پر نصب تھا، لمبی چونچ کھولے پروں کو توے پرواز کرنے پر آمادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس بت کا نام نصر تھا۔ ذوالقلع اس بت کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے علاوہ دو لات، منات، عزا، جہار، اوال، محترمہ، صاد، سعیر، ایانس، رضا، ذوالقفین، جریس، شارق، آئم، مدان، عوف، مناف وغیرہ بہت سے بت اور عجیب عجیب شکلوں صورتوں کے تھے۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا، اب گھنٹے، گھڑیال اور جھانج بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترا پر نصب تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بت پرست سجدہ میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حبل کے سجدے میں جا پڑے تھے۔ تمام لوگ خاموشی سے بتوں کو پوج رہے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر مشکل سے کسی کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ اب یہ لوگ سجدہ ہی میں پڑے ہوئے تھے کہ باد صرصر کے تیز جھونکے چلنے لگے، ہوا ریت کے ذروں کو اٹھا اٹھا کر لانے لگی۔ اب آفتاب طلوع ہو کر کسی قدر بلند ہو گیا تھا۔ دھوپ ہر چہار طرف پھیل گئی تھی، مگر آج دھوپ میں چمک و تیزی و تپش نہ تھی جو روزانہ ہوتی تھی، بلکہ خلاف معمول دھوپ پھیکی ماند اور قدرے سرخی مائل تھی۔ لوگ سجدہ سے سر اٹھا اٹھا کر نہایت ادب سے کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ باندھ باندھ کر، نظریں جھکا جھکا کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ وہ بتوں کو اس قدر احترام کرتے تھے، اس قدر ان سے ڈرتے تھے کہ آنکھ بھر کر انہیں نہ دیکھتے تھے۔ ان کے عظمت و جلال سے خائف رہتے تھے۔ بتوں سے ڈرنے کی وجہ سے تو ہم پرست بھی ہو گئے تھے۔ پجاریوں نے انہیں اور بھی ڈرا ڈرا کر ادھام پرست بنا دیا تھا۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ تیز و تند ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ سب نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، ایسا سرخ جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور آگ کے شعلوں نے اسے سرخ بنا دیا ہو۔ لوگ حیرت اور خوفزدہ نظروں سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے آسمان کا سرخ رنگ سیاہی میں تبدیل ہونے لگا، بالکل اسی طرح آگ کے بعد دھوئیں کے گٹ کی گٹ ماحول کو
तैरा व तार कर दिया करते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वह एक दफ़ा और अपने माबूदों के सामने सजदा में गिर गए। तमाम बुत परस्त सारे पुजारी निहायत खाइफ और गिरा थे। सब के सब घबरा रहे थे। पुजारियों ने कदरे बुलंद आवाज़ से कहा, गिरियाजारी कर रो बुतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से उसको बुलाकर दूर कर, इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। एक आम गिरियाजारी की आवाज़ बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रो कर बुतों से इस बला से महफूज रहने की इल्तिजा करने लगे। हवा इस कदर तेज हो गई थी कि सदरियों के कोह पीकर सुतूनों को हिलाए डालती थी। जो लोग खड़े होते थे उन्हें झटका देकर गिरा देती थी। आफताब गोया छुप गया था। दिन रात से तब्दील हो चुका था। कोई चीज़ नज़र न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के अंबार ला लाकर उलट रहे थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाना काबा के छत पर थे, चबूतरा के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब किसी न किसी तरह उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, मगर उसकी आवाज़ चीखों की आवाज़ में मदम होकर रह गई। उस वक्त मक्का पर कहर इलाही का नुज़ूल हो रहा था। मलाइका ने खुदा के हुक्म से हवा के तमाम दरवाजे खोल दिए थे और हवा अपनी पूरी ताकत से मक्का वालों पर हमलावर हो रही थी। तारीकी बहर जुल्मात से ज़्यादा बढ़ गई थी। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाए कर रहे थे, मगर उनके माबूद पत्थर के थे। वह कुछ सुनते ही न थे। उनके परस्तारों पर कहर इलाही का नुज़ूल हो रहा था और वह खामोश खड़े देख रहे थे। लोगों ने यह समझ लिया था कि क़यामत आज ही वाक़या होगी। कायनात का जर्रा जर्रा आज ही मिट जाएगा। अरबा अनासिर टुकड़ा टुकड़ा कर चूर चूर हो जाएगा और आसमान फट कर उनके ऊपर गिर पड़ेगा। इस ख्याल से उनके दिल हिल गए, सब कांप गए। वह भी चीख चीख कर रोने लगे। खुदा को उनकी जारी पर रहम आया। हवाए तंद के झोंके कम होने लगे। अंधेरा छटने लगा। छटते छटते उजाला हो गया। थोड़ी देर में हवा थम गई। गर्द व गुबार छट गया। आफताब चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वह उठकर खड़े हुए। आसमान गर्द में नहाया हुआ था, गर्द व गुबार में अट रहा था। अभी यह लोग खड़े हुए थे कि उन्होंने मगरिब की तरफ एक अजीब किस्म के रोशनी और चमक देखी। अवामुन्नास में इस रोशनी को देखकर हैरानगी छा गई। उससे पहले उन्होंने यह रोशनी, ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वह हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े आदमी ने बुलंद आवाज़ से कहा, शरीफ अरबो, तुमने उस रोशनी और चमक को देखा? आओ मैं तुमको बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उसकी तरफ दौड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमज़ोर आवाज़ तुम में से हर शख्स सुन सके। सब लोग निहायत खामोशी से खड़े होकर उस बूढ़े को देखने लगे। उस अरसा में अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा के छत से नीचे उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में सुकूत मिक़दारी था। हर शख्स चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पांव पर जर्ब आ गई थी। वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नज़रों से देखने लगा। बूढ़ा अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, पेशानी तंग, आंखें छोटी, गोल हलकों के अंदर धसी हुई थी। सर के बाल सफ़ेद और लंबे थे, जो औरतों के लटों की तरह खजूर के रेशों से बंधे थे। दोनों तरफ सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी। मूछें दाढ़ी से मिल गई थी। लबें इस कदर बढ़ी हुई थी कि मुंह को ढक
कर दाढ़ी से जा मिली थी। हड्डियाँ इस हैबत गुज़ाई में अच्छा खासा बनमानुस मालूम होता था। उसकी बाएं हाथ में इंसान की खोपड़ी और दाहिने में किसी इंसान की हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पोशाक भी अजीब थी। एक लंबा हुब्बा था जिसके नीचे का हिस्सा ऊँट की खाल का और कमर के ऊपर का हिस्सा ऊँट के ऊन का था। सर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आँखें हलकों के अंदर धंसी हुई थी, चिंगारियों की तरह चमक रही थी। उस बुढ़े का नाम अबरशन था। यह काहिन भी था और एराब भी। उसे गैबदानी का दावा था। तमाम अरब में उसकी शोहरत थी। अहले अरब उसे माफ़ुकुल फितरत इंसान समझते थे। उसकी अज़मत व जलाल से डरते थे। उसकी ज़हानत और गैबदानी पर यकीन व एतमाद रखते थे। किसी अरब की यह मजाल न थी कि वह उसकी बात न सुने या उसकी बात पर यकीन न करे। अबरश ने शोलाबाज नज़रों से चारों तरफ देखा। हर तरफ लोगों के ठट लगे हुए थे। सब खामोश खड़े उसे तक रहे थे। अबरश ने कहा, ए लात व हबल पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल क़ब्ल उसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक मर्तबा पहले से भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, उसी तरह उस रोज़ भी हैरान हुए थे। मुझसे उस रोज़ पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। मैं उस रोज़ खामोश हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस रोज़ मुझे बताई थी वह मैं बयान न करना चाहता था, और आज मैं बग़ैर दरियाफ़्त किए खुद बयान करता हूँ। लोग ज़्यादा तवज्जो से उसकी बातें सुनने और उसे गौर से देखने लगे। अबरस ने कहा, देखो, मेरे हाथ में यह इंसान की खोपड़ी है और यह हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहाँ बनु बकर और बनु साल्ब जैसे ज़बरदस्त कबाइल की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही थी। मुमकिन है दुनिया उस लड़ाई की जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह लड़ाई जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज़्ज़त व नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी गई थी। लेकिन क्या कोई ऐसा खुददार अरब है जो अपनी बात बर्दाश्त करे?